Now question number 10 of exercise 8.1. Here, using the binomial theorem, you have to indicate which number is larger. By using binomial theorem, you have to indicate which number is larger. Two numbers are given. First number is 1.1 raised to 4 zeros 10,000. 1.1 raised to 10,000 and another number is 1000. So by using binomial theorem, you have to check which number is larger. Done. So now here we'll start with the 1.1 raised to 10,000. So 1.1 raised to 10,000. So we can write this 1.1 as a 1 plus 0.1 raised to 10,000. Yes. So this 1 plus 0.1 raised to 1000 is nothing but the which formula? ये कौन सा formula है? This is the form of 1 plus x raised to n. 1 plus x raised to n formula is there. So what is 1 plus x raised to n formula? 1 plus x raised to n formula. So this 1 plus x raised to n is nothing but the nc0 into 1 raised to n plus nc1 1 raised to n minus 1 into x plus nc2 1 raised to n minus 2 that is 1 and x square plus nc3 x cube ऐसे होगा up to ncn x raised to n. Done. This is the formula. So now we are applying this formula. In here we are taking x equal to 1000, x equal to 10,000, sorry, n equal to 10,000 and x equal to 0.1. So now here expansion is 1000 and n equal to 10,000 is there. So 10,000 C0, 10,000 C0 0.1 raised to 0. तो 1 ही रहेगा प्लस 10,000 C1, 10,000 C1 x raised to 1. Here our x is 0.1. So 0.1 raised to 1. Clear? Plus 10,000 C2, 10,000 C2 0.1 raised to 2. ऐसे कहाँ तक जाएगा? 10,000 C 10,000 हाँ लास्ट तक जाएगा 10,000 C 10,000 0.1 raised to n. n क्या है हमारा 10,000. What is the equation? We have to check which number is larger, this number or this number. So for that, here we know nc0, n any number. You can take any positive integer c0. So this one is nothing but the 1. This one is 1. nc0 ले लो, 5c0 ले लो, 6c0 ले लो, 100c0 ले लो. इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 1000 C1. बोलो 1000 C1 की वैल्यू क्या होगी? बहुत सारे सम्स किए हमने. 5C1 था, 4C1 था, 6C1 था. ये सब की वैल्यू क्या आ रही थी? इसकी 5, इसकी 4, इसकी 6. तो ये 1000 C1 है, 1000 C1. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10,000 C1. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10,000 इंटू 0.1 रेज टू 1. तो इट्स 0.1. और बाद में ये सबका सिंप्लीफिकेशन इसको मैं ऐसे लिख दूं प्लस ये सब की वैल्यू है सब पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी है ना. इसका कोई नंबर भी लगा वो पॉजिटिव नंबर भी होगा. तो दैट इज
plus some other positive integers, है ना। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी उसका हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिजल्ट मिल जाता है हमें। देखो दिस इज 1 प्लस 10,000 इंटू 0.1, 1/10, सो 1/10 एक जीरो कट होगा, सो दिस विल बी 1000, 1000 प्लस हियर सम अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू में मिल गई। कौन से नंबर की वैल्यू? 1.1 रेस टू 10,000 की वैल्यू क्या है? 1000 प्लस 1, 1000, 1001 प्लस इसके अंदर कुछ और भी ऐड होगा, ये सब टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन, प्लस सम अदर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो अभी आप कंपैरिजन करवा पाएंगे। कौन सा कंपैरिजन? वी हैव टू कंपेयर दिस 1.1 रेस टू 10,000 एंड 1000. So what is the value of this 1.1 raised to 10,000? The value of this 1.1 raised to 10,000 is nothing but the 1001 plus some other positive integers. Done? 1001 plus some positive integers, and here this is 1000. So which one is greater? So here we can say that this one is greater than, this one is greater than 1000. So now our comparison is, we can write this 1.1 raised to 10,000 greater than 1000. This is our answer. Our question is which one is greater than. So our answer is 1.1 raised to 10,000 is greater than 1000. Clear students? कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, वेरी गुड। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Now for the 11th sum, find, here you have to find the value of a plus b raised to 4, a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4, and hence by using this, hence evaluate root 3 plus root 2 raised to 4 minus root 3 minus root 2 raised to 4. पहले तो क्वेश्चन को समझो. First we have to find the value of this expression a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4. After expanding this expression, we have to use this expression, that means solution of this expression, and using that we have to find the value of this one. आपको डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन नहीं करना है, पहले आपको इसका एक्सपेंशन करना है, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा उसका यूज करके, है ना, हेंस इवैल्यूएट, जो आंसर आएगा उसका यूज करके आपको ये वाली वैल्यू है वो निकालनी है. क्लियर? सो आवर टारगेट इज टू एक्सपांड दिस टू टर्म्स. So this is a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4. This is nothing but the expansion with the binomial theorem, है ना. This is binomial whose index is 4. This is again one binomial whose index is 4. तो आपको यहाँ पर दो बार बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन करना है और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. क्लियर? सो नाउ we will start with this a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4. बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन करेंगे दो बार, है ना. तो इसका बायनोमियल एक्सपेंशन देखो क्या होगा, a plus b raised to 4, डायरेक्ट लिखूं 4c0, 4c0, बोलो a की पावर क्या आएगी, है ना. ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 है, तो a की पावर 4 और b की पावर, ये जो c के साथ होगा वो 0, तो b रेज टू 0. प्लस है तो हर एक टर्म में प्लस ही आएगा. 4c0, 4c0 के बाद होता है 4c1, 4c1. नाउ पावर ऑफ a इज 4 minus 1, so a cube. Now power of b is 1, b raised to 1. क्लियर? नाउ इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, 4c0 हो गया, 4c1, उसके बाद आएगा 4c2, 4c2. ए और बी की पावर रखना है, ए की पावर क्या आएगी, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ए स्क्वायर, बी की पावर यहाँ पर जो नंबर होता है वो बी स्क्वायर,
प्लस 4c0 4c1 4c2, उसके बाद आएगा 4c3 ए और बी की पावर। ए की पावर क्या होगी, पावर ऑफ ए सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू नंबर 4 माइनस 3, ये 1, तो 1 को नहीं लिखते, और बी की पावर ये जो नंबर होता है वो 3, डन। प्लस 4c4 e की पावर 0 b रेस टू 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, क्योंकि जो भी पावर होगा उससे एक ज्यादा, 5, 1 2 3 4 5 टर्म्स, हर एक टर्म का जो पावर का एडिशन कितना होगा 4। देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, और ये 0 प्लस 4 4 हो गया। क्लियर। चलो ये हो गया एक्सपांशन ऑफ a plus b raised to 4. From this expansion, we have to subtract the expansion of a minus b. So minus sign, minus. Now we'll perform expansion of this one, a minus b raised to 4. तो बोलो इसका एक्सपांशन क्या होगा, माइनस साइन है तो अल्टरनेटिवली साइन पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, और 4 से स्टार्ट होगा, so it will be 4c0 a raised to 4 b raised to 0, b raised to 0 को नहीं लिखते हैं, डन। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव 4c1 a क्यूब b रेस टू 1, देन प्लस साइन ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा जब बीच में माइनस साइन होगी। 4c0 4c1, उसके बाद आएगा 4c2 a रेस टू 2 b रेस टू 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 4c3 a की पावर a रेस टू 1 b क्यूब, प्लस 4c4 a रेस टू 0 है ना, दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 4 0 होगा, तो a रेस टू 0 और b की पावर 4, डन। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ a माइनस b रेस टू 4। नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा देखो, सो दिस इज इक्वल टू 4c0, वैल्यू बाद में लिखते हैं चलो, तो 4c0 a रेस टू 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b रेस टू 4, है ना, इसको ऐसे ही लिखा, माइनस साइन ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये सबकी साइन चेंज होगी, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, so this will be minus 4c0 a raised to 4 plus 4c1 a cube b raised to 1 minus 4c2 a square b square plus 4c3 a b cube minus 4c4 b raised to 4। चलो प्लस माइनस वाली टर्म को कैंसिल आउट करें तो क्या क्या कैंसिल होगा देखो, ये 4c0 a रेस टू 4 माइनस 4c0 a रेस टू 4, ये 4c0 a रेस टू 4, एक प्लस एक माइनस, ये कैंसिल, डन। उसके बाद माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, सो माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी कैंसिल। उसके बाद माइनस 4c4 b रेस टू 4 ये भी कैंसिल, डन। तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये सारी टर्म्स, ये और ये 4 टर्म बाकी बची। तो 4c1 क्या होता है, 4c1 4, so it's a 4 a क्यूब b, डन। और ये 4c3 क्या होता है, 4 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, तो 4 को ये 3 के आगे ब्रेक लगाओ तो ये 4 बचेगा, तो ये 4c3 भी 4 होगा, so this one is 4 ab क्यूब, डन। उसके बाद ये अगेन 4c1, तो दिस इज 4 a क्यूब b, और ये 4c3 वो भी 4 होती है, तो 4 ab क्यूब। देखो क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, a क्यूब b like terms and ab क्यूब
एंड ए बी क्यूब, दिस आर द लाइक टर्म्स। तो ये दोनों लाइक टर्म का एडिशन 4a³ b 4a³ b तो होगा 8a³ b 8a³b, और ये दोनों लाइक टर्म का एडिशन 4ab³ 4ab³, सो इट्स 8ab³। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकते हो, यहाँ से 8 कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है और b कॉमन दिख रहा है, सो 8ab कॉमन टर्म, रिमेनिंग टर्म्स आर a² प्लस b²। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ दिस वन, है ना। फाइंड a प्लस b रेज टू 4 माइनस a माइनस b रेज टू 4। इसका आंसर हमारे पास आ गया 8ab ब्रैकेट a² प्लस b²। डन, इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हेंस, है ना, ये फाइंड करके आपको इवेल्यूट करना है ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट को क्वेश्चन के साथ कंपेयर करवाओ तो क्या है, देखो, √3 प्लस √2 a प्लस b, √3 minus √2 a minus b, power is 4। That means to find the value of this expression, in this expression we have to put a equal to क्या पुट करेंगे, √3, and b equal to क्या पुट करेंगे, √2। So now put a equal to √3 and b equal to √2, a equal to √3 and b equal to √2। तो ये पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा क्या, √3 प्लस √2 रेज टू 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू 4 इक्वल टू 8ab। 8ab, so 8ab is 8 into a is √3 and b is √2 bracket a² plus b², so it's a √3² plus √2²। क्लियर, आ गया। So this one is √2 into √3, √6, 8 √6, √3² 3 plus √2² 2, 3 plus 2 5, 5, so 8 5s are 40, 8 5s are 40, √6 is the answer of second part। This is the answer of second part। Clear? So this is how you can solve your question number 11। इसमें किसी को कोई डाउट है ना? सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12। कोई डिस्काउंट स्कीम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 भी करवाएंगे, है ना, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है। सो हियर फाइंड x plus 1 raised to 6 plus x minus 1 raised to 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास a प्लस बी रेज टू 4 था, a माइनस बी रेज टू 4 था, और यहाँ तो इससे भी इजी 1 प्लस वाला फॉर्म है। तो x plus 1 raised to 6, x minus 1 raised to 6, and using this, hence evaluate value of √2 plus 1 raised to 6 plus √2 minus 1 raised to 6, ये वैल्यू हमें निकालनी है। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद में फाइनल जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर में हम x इक्वल टू √2 पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। डन, simplest sum। So now let's start with the given। We have to find x plus 1 raised to 6 plus x minus 1 raised to 6। इसको एक्सपांड करना है। इसका फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, x plus 1 raised to 6 को कैसे एक्सपांड करें, अगर कोई बताना चाहे। हाँ, वेरी गुड। 6 से स्टार्ट करेंगे, 6c0 टू 6c6, 7 टर्म आएगी। तो फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन करें, 6c0, x का पावर दोनों का सब्ट्रैक्शन, x रेज टू 6, और 1 का पावर 0, और 1 का पावर कुछ भी हो तो कुछ नहीं लिखना है, तो बस अभी x को ही हमें कंसिडर करना है। डन, प्लस 6c0 के बाद होगा 6c1 दोनों का सब्ट्रैक्शन 5, तो x का पावर 5, x का पावर 5 और 1 का पावर 1, तो 1 का पावर 1 होगा, नहीं लिखना है। प्लस 6c2 x का पावर 4, 1 का पावर 2 1, प्लस 6c3 x पावर 3, 1 पावर 3,
प्लस 6c4 एक्स पावर टू 1 पावर 4 है ना, 1 का पावर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 ही आ रहा है, प्लस 6c5 एक्स पावर 1 पावर 5 प्लस 6c0 एक्स रेस टू 6c6 एक्स रेस टू 0, तो वो भी नहीं लिख रहा हूँ, 1 रेस टू 6 वो भी नहीं लिखना है। तो ये हो गया एक्सपांशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म। डन। नाउ फ्रॉम दिस कुछ नहीं करना है, ऐड करना है इसका एक्सपांशन। ये भी सिंपल है ना, सेम आएगा, लेकिन माइनस साइन है तो ये जो सारी टर्म आएगी उसमें प्लस माइनस होता जाएगा। सो प्लस x minus 1 raised to 6, so it's a 6c0 x raised to 6 minus 6c1 x raised to 5, done, plus 6c2 x raised to 4 minus 6c3 x cube plus 6c4 x square minus 6c5 x raised to 1 plus 6c6। क्लियर। एडिशन है तो कुछ नहीं, इसमें जो प्लस माइनस टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दो, तो प्लस माइनस को कैंसिल करें तो क्या होगा, देखो ये टर्म 6c1 प्लस माइनस कट, ये टर्म 6c3 एक्स क्यूब प्लस माइनस ये भी कट, ये टर्म 6c5 प्लस माइनस कट, बाकी क्या बचा, ये वाली सब टर्म्स, इसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, ये सब टर्म्स। डन। वैल्यू लिखते जाएंगे, 6c0 होता है 1, तो इट्स x रेज टू 6 प्लस x रेज टू 6, और देखो तो ये सब 2 टाइम्स ही आ रहा है, तो 2 को पहले से ही कॉमन ले लें, है ना, देखो ये 2 टर्म ये तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x रेज टू 6। उसके बाद 6c2, बोलो 6c2 की वैल्यू क्या होगी, 6c2। इसके बाद मैं आपको एक टेबल लिखवा दूंगा, तो आपको ये सारी वैल्यू आपको लर्न कर देनी है ना, हर एक बार ऐसे आपको रफ पेज में जाके इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 की ब्रेक लगेंगे 4, तो ये 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट, 2 3 जा 3 5 जा 15, ये होगा 6c2 15 x रेज टू 4, ये हो गया। उसके बाद ये 6c4 क्या होगा, 6c4 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 6 5 4, सेम आएगा 15 x स्क्वायर प्लस 6c1 1, डन। तो ये हमारा एक्सपांशन हो गया। नाउ वी हैव टू इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस वन, सो नाउ फॉर दिस वैल्यू √2 प्लस 1 रेज टू 6 प्लस √2 minus 1 raised to 6, what you have to do, we have to put x equal to √2 in this equation number 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू √2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा √2 प्लस 1 रेज टू 6 प्लस √2 minus 1 रेज टू 6, ये वाली वैल्यू मिलेंगी। डन। तो पुट करें 2 इंटू x रेज टू 6, इट्स √2 रेज टू 6 प्लस 15 x रेज टू 4, so √2 रेज टू 4 प्लस 15 √2 स्क्वायर प्लस 1, सिंप्लीफाई करो, √2 रेज टू 6 क्या होगा, √2 रेज टू 6 है ना, √2 रेज टू 2 करो तो 2 होगा, 2 और उसका 3 पावर 2 रेज टू 3 8 प्लस ये √2 रेज टू 4 है तो √2 का 2 पावर करो तो 2 और उसका 2 पावर 4, 15 4 जा ये 60 होगा, प्लस √2 स्क्वायर तो 2 होगा, 15 2 जा 30 प्लस 1, इसका एडिशन होगा क्या होगा 90
8 1 99, multiplication होगा 198. Hence the value of this one, root 2 plus 1 raised to 6 plus root 2 minus 1 raised to 6. So value of this one is 198. Clear? बोलो. रूट 2 raised to 6 जैसे होगा रूट 2 raised to 2 raised to 3, 2 3 जा 6. यस. रूट 2 स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 स्क्वायर क्या होगा? 2. 2 क्यूब क्या होगा? 8. क्लियर? सिमिलरली ये 4 है तो रूट 2 रेस टू 2 कर दो तो 2 2 जा 4, 4 15 जा 60, और ये रूट 2 स्क्वायर तो 2, 15 2 जा 30. क्लियर नाउ? नाउ क्वेश्चन नंबर 13. So for question number 13, show that 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by, this one is divisible by 64, where whenever n is positive integer, n is some positive integer. और आज हमारी ये रेड पेन ने हमारा साथ छोड़ दिया है. So when n is positive integer, done. So we have to prove that this term 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 60. कोई भी नंबर 64 कोई भी नंबर 64 से डिविजिबल कब होगा? 64 को छोड़ो, 2 से करना है. सपोज 8 इज डिविजिबल बाय 2 है ना, तो 8 इज डिविजिबल बाय 2 प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा? उसका एक फैक्टर 2 है ना, ऐसा मैं दिखाऊंगा. सो हियर वी कैन से दैट 8 इज डिविजिबल बाय 2 है ना. सपोज 16 इज डिविजिबल बाय 2 तो मुझे क्या करना है? इसका एक फैक्टर 2 दिखाना है. सो वी कैन से दैट 16 इज डिविजिबल बाय 2. So hence similarly we have to prove this 9 raised to n plus 1 minus 18 minus 9 is divisible by 64. तो इसका एक फैक्टर 64 है, ऐसा हम प्रूव करेंगे है ना. ये एक्सप्रेशन के इक्वल टू 64 लाएंगे और बाकी कुछ फैक्टर रख देंगे तो जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज डिविजिबल बाय 64. तो कैसे करना है देखो. सो 9 raised to given 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9, say this one as a result number 1. अब इसका भी यूज करके कर सकते हो लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये टर्म ले रहा हूँ है ना. आप इसको साथ में लेके भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं. सो 9 raised to n plus 1, जस्ट टेकिंग 9 raised to n plus 1. सो 9 raised to n plus 1 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को 1 plus 8, 9 इज इक्वल टू 1 plus 8 और उसका पावर n plus 1 है. इसमें किसी को कोई इश्यू है ना. हर एक स्टेप को समझना है, कहीं पर भी डाउट आए तो मुझे स्टॉप कर देना है, अदरवाइज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा ऐसे ही. सो नाउ 1 plus 8 raised to n plus 1. नाउ इंस्टेड ऑफ n वी आर हैविंग n plus 1. सो नाउ आई एम अप्लाइंग आवर फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट्स n plus 1 c0 into 1 raised to n plus 1 8 raised to 0 plus n plus 1 c1 n plus 1 c1 1 raised to 1 raised to n plus 1 minus 1 1 raised to n, तो 1 का पावर कुछ भी वो 1 ही आएगा और 8 का पावर 1 आएगा है ना, क्योंकि वहां पर 8 1 है तो 8 का पावर 1 प्लस n plus 1 c2 1 का पावर n plus 1 minus 2 कुछ भी हो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 का पावर होगा 2. डन. तो ऐसे करते जाएंगे हम. एक और टर्म लिख देते हैं n plus 1 c3 8 का पावर 3. ऐसे करते करते लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी? आपकी लास्ट टर्म होगी NCN होता है तो NCN plus 1 और 8 का पावर होता है n plus 1. दिस विल बी योर लास्ट टर्म. इसमें किसी को कोई डाउट? सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, n की जगह पर n plus 1 लिखा. क्लियर? This is our NC0, NC0, NC1, NC2, NC3, NCN
और n की पावर और जो 8 की पावर है वो एक एक इंक्रीज होगी, 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1, 2, 3 और कहाँ तक, n+1 तक। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आगे वाला स्टेप, कोई भी नंबर का C0 ले लो। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1C0, 2C0, 3C0, n+1 C0, सबका नंबर क्या आंसर क्या आएगा? 1। डन। प्लस NC1 है ना, 5C1 ले लो, 6C1 ले लो, 7C1 ले लो, या फिर NC1 ले लो, या फिर n+1C1 ले लो। उसका आंसर क्या आएगा? n+1 आएगा। यस और नो? देखो ऐसा लिखवाया है NC0, किसी भी नंबर का 0 नंबर 1, और ये 5C0 तो 1, 6C0 तो 1, और ऐसे लिखवाओ 5C1 तो 5, 6C1 तो 6, NC1 तो n, सो n+1C1 तो क्या होगा? n+1, सो n+1C1 तो n+1 इंटू 8 8 प्लस बाकी सब मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ये सारी टर्म्स है ना, ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। n+1 C2 8 स्क्वायर है ना, 8 स्क्वायर का 64 भी नहीं कर रहा हूँ मैं, n+1 C3 8 क्यूब अप टू n+1 C n+1 8 रेस टू n+1। डन। इसको ऐसे लिख दिया, ये सारी टर्म को मैंने एज इट इज लिखा। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, ये क्या होगा? 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस ये वाली टर्म सारी एज इट इज है ना, ये जो लिखा हुआ मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काम यहाँ पर करना है। तो ये देखो क्या आ गया, इसका स्टार्ट किया था हमने 9 रेस टू n+1 से, 9 रेस टू n+1 से स्टार्ट किया था, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था। सो 9 रेस टू 8+1 इक्वल टू दिस वन प्लस ये एंटायर टर्म आ गई हमारी। तो ये क्या होगा? 8n प्लस 9, इसको मैं लेफ्ट साइड ले लूँ तो क्या होगा? 9 रेस टू n+1 माइनस ये 8n होगा है ना, देखो ये वाली टर्म आ गई। इसको मैं लेफ्ट साइड लूँ 8+1 तो -9 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू ये जो टर्म मैंने एज इट इज रखी थी ना वही टर्म है। अभी यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 8 रेस टू स्क्वायर कॉमन ले लूँ क्योंकि यहाँ पर 8 रेस टू 2 पावर है, यहाँ पर 8 रेस टू 3 पावर है, और यहाँ पर 8 रेस टू n+1 पावर है। तो लोएस्ट पावर हम कॉमन ले सकते हैं, तो लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे 64, 64 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? तो 8 का जो पावर होगा उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो दिस विल बी n+1 C2 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 0 मीन्स 1, प्लस यहाँ से क्या होगा? n+1 C3 8 क्यूब है तो उसमें से 8 बचेगा, ऐसे ऐसे करके लास्ट में जाएंगे तो ये n+1 C n+1 और ये 8 रेस टू n+1 है तो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका पावर n-1 होगा, और ये कुछ भी होगा, कुछ पॉजिटिव इंटीजर होगा, कुछ काम करने हमें तो सिर्फ ये दिखाना था कि 9 रेस टू n+1 माइनस 8n माइनस 9 is the factor of, it is divisible by 64 because one of the factor of this term is 64. So here we can write, what we can write, what you have to prove. So this term is divisible by, hence 9 raised to n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. Clear students? कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रूव दैट सिग्मा एडिशन की साइन है r इक्वल टू 0 to n 3 raised to r into NCR, and that is equal to 4 raised to n. सिग्मा r raised to 0 to 1, that means r की वैल्यू 0 से लेके n तक हमें पुट करनी है यहाँ पर और इसका सम करना है। So if you are taking r equal to 0, so it's a 3 raised to 0 NC0 plus सिग्मा का साइन प्लस, then you have to take r equal to 1, so r equal to 1 लेंगे तो होगा 3 raised to 1 NC1 है ना, r की वैल्यू 0 से n तक लेना है तो पहले 0 ली उसके बाद 1, then we have to take r equal to 2, so ये होगा 3 raised to 2 NC2 done, then we have to take r equal to 3, so 3 cube NC3 कहाँ तक? up to r equal to 0 to n, n लेना है तो 3 raised to n NCN। तो ये फॉर्मूला में फिर से रीराइट करूँ तो ऐसा होगा NC0 1 raised to n 3 raised to 0 प्लस NC1 1 raised to 1 3 raised to 1, बोलो कौन सा फॉर्मूला है? NC2 1 raised to 2 3 स्क्वायर प्लस NCN 1 raised to 0 3 raised to n। इसको ऐसे लिख सकते हैं
1 प्लस 3 रेस टू एन, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करो, ऊपर वाला मिलेगा। सो 1 प्लस 3 रेस टू एन इज नथिंग बट दी 4 रेस टू एन। ये आपको प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव। आया समझ में? देखो ये r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n तक रखना है, तो पहले 0 की वैल्यू पुट की। सो 3 रेस टू 0 nc0 प्लस 1 लिया, 3 रेस टू 1 nc1, उसके बाद 2 3 रेस टू 2 nc2,